डर होता है ना कि नहीं ये नहीं हो सकता, छुपना है उससे। हाँ, क्योंकि कितनी लेडीज आती हैं ब्रेस्ट में लंप है, दैट्स व्हेन द फैमिली मेंबर्स कम एंड दे एक्सप्रेस विद अ लॉट ऑफ ग्रीफ कि बताया ही नहीं मम्मी ने। कैंसर एक पर्टिकुलर डिसीज नहीं है, but there is a variety of cancers that can happen. Large percentage of cancers are still happening because of environmental factors. They can cause cancer, and it's not necessarily only environmental, it is also lifestyle related. Diabetes, obesity, hypertension. People with active lifestyle, working out, athletes, sportsmen. Do you see cancer coming in them, or that helps them? Did you know 25% of cancer patients suffer from depression, and most of them suffer in silence? मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं करता है, सॉल्व करना तो दूर की बात है। इसलिए आज हम लेके आए हैं एक और एपिसोड द गट फील शो पर, वेयर वी विल शेड लाइट ऑन द अनस्पोकन बैटल्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ब्रेक द स्टिग्मा। आज का एपिसोड होने वाला है थोड़ा हेवी और इमोशनल। दिस पॉडकास्ट इज पावर्ड बाय एरिस लाइफ साइंसेज एंड वी आर डिलाइटेड टू वेलकम डॉक्टर तन्वी सूद, a medical oncologist, and she's joining us to have deeper conversations about cancer, its awareness, and how it impacts the mental health and the loved ones, और बहुत कुछ। She has gained her education from Manipal University and she is currently working at the Paras Hospital, Gurgaon. Stay tuned with us while we welcome Dr. Tanvi Sood at the Gut Feel Show, because healing isn't just physical, it's emotional too. Hello, Dr. Tanvi. Welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? Hi, thank you so much for having me here. I'm having a great day. Good, good. Most welcome. And I think the topic we are going to get into is very, very serious and intense. A lot of people don't talk about it. Tell me first a little bit about yourself, your journey as a doctor. What are you doing today? All right, so my journey as a doctor started quite a while back, and as an oncologist, I'm an oncologist now. I entered the world of oncology around 10 years back. I have background of MD medicine, and after that I pursued oncology a little bit because I wanted to treat chronic illnesses, but there was a personal aspect also. आप किसी भी oncologist से बात करेंगे, especially उस समय पे कि आपको क्या motivate किया oncology जैसे branch में आने के लिए, तो हमेशा कहीं ना कहीं एक personal story भी होती है। तो I had a close family member as well, my own father, who was a cancer survivor. So during those years जब मैं खुद internship कर रही थी and I saw the world of oncology कि अच्छा ये भी एक branch होती है, and as the years went on, MD medicine खत्म हुई, somehow I found myself choosing oncology and I chose to specialize in medical oncology. So 10 years fast forward, now I'm a consultant and I'm working at Paras Health in Gurugram as a medical oncologist, and मैं solid cancers treat करती हूँ primarily, and precision oncology is something जो आजकल सारे oncologists जो modern therapies होती हैं, apart from chemotherapies, हम immunotherapy यूज़ करते हैं, targeted therapies यूज़ करते हैं, पर ये primarily medical treatment होता है. So that's been my overall journey around oncology. That's how I landed in oncology, and I continue to practice it. And I am sure it must have been an intense journey so far, because the area you're working in is quite, for a lot of people, it is a gray area. People don't know about it yet. And as you mentioned, your father went through it. I think that must have been a very turbulent time, if you may speak. Yeah, so two parts of it. I was a young doctor at that time, just finished MBBS, तो वो understanding is not so deep, but हाँ पता है कि जो भी है something serious है. We know about it very theoretically. Yes. उस time पे जो practical actual implication of going through a diagnosis, the treatment, chemotherapy options क्या होते हैं, technical understanding of it, treatment decisions, वो सब तो of course उस समय पे कोई knowledge नहीं थी, but I knew that as a family this is something we'll be enduring. My father will be going through this and this treatment, surgery होएगी and so on and so forth. So that was a very unique time in my life also, when I was a budding doctor, a new doctor myself, जहाँ पे clinical touch just शुरू ही हुआ था, तो मुझे उस lens से चीज़ें समझ में आ रही थी. But of course prognosis क्या होता है, long term outcomes क्या होते हैं, that was something I was taking at a day at a time. जो उनके treating doctors हमें जैसे समझा रहे थे कि अच्छा अब ये biopsy हुई है,
अब इसके आगे इसका मतलब क्या है, अब पेट सीटी स्कैन हुआ है, स्टेज क्या है, यू नो दीज आर द क्वेश्चंस जो एज अ Yeah. फैमिली मेंबर कोई पूछता है. एंड इसके आगे अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, क्योरेबल है या नहीं है, यू नो द नंबर वन क्वेश्चन एनी बिल्कुल. पर्सन आस्क्स. तो मेरी जर्नी एज अ एक्चुअली पेशेंट अटेंडर स्टार्ट हुई है rather than a doctor. And I personally feel best. That's why I think I kind of understand it a little bit more deeply also, because when a patient enters my OPD, मुझे याद है कि उस बिल्कुल. तरफ बैठने का मतलब क्या है. That is why I asked this question, क्योंकि आपने ना वो चीज़ as first hand experience भी देखा है. मतलब you have seen it before you entered into it. So I think that depth of understanding as a patient comes in. क्योंकि Absolutely, as a you were on the other caregiver. side also. Yes, I've seen my mother supporting him. I've seen my family, how it impacts a family. What are the financial decisions that a person has to take जब हम treatment decide कर रहे होते हैं. Then opinions, second opinions, how to collectively decide कि हाँ मेरे patient के लिए यही सबसे viable approach है, best approach है. Although I was so young then, I was not the primary decision maker, but everybody gets involved, चाहे वो कितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो. और बहुत सारे लोग होते हैं आसपास के, relatives हो गए, family friends हो गए, professional colleagues हो गए. Everybody has something or the other to contribute and say. Yes. So we know what families go through, you know, and now of course after years of practicing and having dealt with many families who deal with the diagnosis of cancer, we've seen, you know, there are so many variations. We call it a gray spot because अभी भी taboo है, एक stigma है. जब कैंसर सुनते तक धक्का तो लगता है, वो क्योंकि you know, एक डर है. डर इससे है. शायद बचते नहीं है. Absolutely, and हमें मालूम है कि ये on most occasions एक serious diagnosis तो होता ही है ना. We cannot take the seriousness away from the diagnosis, Yeah. because we know कि chronic problem है, कई बार terminal problem होती है, कौन से stage में catch हुआ है, वो decide make or break हो जाता है maximum patients के लिए, you know, बिल्कुल. survival outcomes उस पे depend करते हैं. तो of course we cannot take the seriousness away from it. And taboo इसलिए है क्योंकि awareness अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, you know. हमें खुद को भी aware करना है और patients को भी aware करना है that there are so many options available now, not taking away the seriousness of it, but we know that there are solutions available in today's time. I think यहाँ पे वो चीज़ प्ले कर रही है जब हम सोचते हैं कि किसी चीज़ से छुप जाते हो तो आप बच जाते हो. जबकि यहाँ पे Absolutely, गलती हो रही है, जितना आप उसको इग्नोर करोगे उतना वो सीवियर हो जाएगी प्रॉब्लम. you're so correct. I think you've hit it on the head. So ये जो एक डर होता है ना कि नहीं ये नहीं हो सकता, छुपना है उससे. हाँ, क्योंकि बस. कितनी लेडीज आती हैं, यू नो, ब्रेस्ट में लंप है, पता है ब्रेस्ट में लंप है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो जब बढ़ रहा है, बड़ा हो गया है, एंड रियली अ प्रॉब्लम बहुत आउट ऑफ हैंड हो गई है पेशेंट को, यू नो, और सिम्टम्स आने शुरू हो गए. दैट्स व्हेन द फैमिली मेंबर्स कम एंड दे एक्सप्रेस विद अ लॉट ऑफ ग्रीफ Yes. कि बताया ही नहीं मम्मी ने, हाँ. कभी बोला ही नहीं, उसे छुपाते रह गए. उसको छुपाते रह गए, क्योंकि एक उनको भी डर होता है कि ये ना निकल आए. हाँ. शायद मन में कहीं पता है कि हो सकता है, तो नॉलेज है, मालूम है उसके बारे में, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि यू नो हम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि ऐसा हो भी सकता है हमारे साथ. वो एक मतलब कहानी मैंने बचपन में सुनी थी कि कबूतर जब कबूतर बिल्ली को देखता है मुंह जमीन में घुसा Yeah. लेता है. तो वही लेकिन प्रॉब्लम है. आई थिंक वही नैरो माइंडेडनेस है जहाँ पे हम Yeah. सोचते हैं कि किसी चीज का बात मत करो या उससे छुप के बैठ जाओ तो आप बच गए. Correct. आई थिंक वहीं पे फंसे हुए हैं हम लोग अभी. हम अभी वहीं पे फंसे हुए हैं ज्यादातर. देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी. ओपीडी में आजकल बहुत पेशेंट्स आते हैं स्क्रीनिंग के लिए, यू नो, एंड दैट मेक्स अस हैप्पी कि आप Which खुद. generation is this? खुद Are you चल seeing के any pattern into this? Yes, older people are also coming. It's not Okay. just younger people. Okay. ऐसा लगेगा हमारा perception है कि younger people are more aware. Even older people come in their 50s, 60s, and there are people who are, you know, regularly getting routine tests done. अब उसमें वो cancer के भी जो भी कराते हैं. screening protocols होते हैं कराते हैं. तो that makes us happy. I will not say कि 100% everybody is doing it, It is starting to rise. but some Awareness- change is a good change. बिल्कुल बिल्कुल. I think we have started moving towards it, Yeah. but considering the population of the nation and considering the Absolutely. masses we are at, Absolutely. it's a drop in the ocean. Yeah. But we need to work towards it. That is what we are doing right now. Yes. So tell me more about your practice. You practice at Paras Hospital, Gurgaon, and you see solid cancers. Yes. So I see solid cancers. What solid cancers means Yes. What is that? Yeah, so basically oncology as a whole अगर हम देखें तो वो कैंसर ट्रीटमेंट्स के बारे में है, एंड उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी होता है जो कीमोथेरेपीज या इम्यूनोथेरेपी बेसिकली मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं. Okay. चाहे टैबलेट्स के ऑप्शन भी आ गए हैं आजकल, टारगेटेड थेरेपीज होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्जन्स जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट Okay. होते हैं.
तो वो सर्जरी के मोडालिटी से हेल्प करते हैं. Then there is radiation oncologist, जो radiation therapy से treat करते हैं, that is treatment with X-rays. Okay. And you know, many patients most of the time require more than one modality of treatment. Depending on the type of cancer, stage of the cancer. So these things change depending on the various diagnosis, right? Within medical oncology, अभी तक ट्रेडिशनली तो ऑल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट लिक्विड कैंसर्स आल्सो एंड सॉलिड कैंसर्स आल्सो, व्हिच मींस के कैंसर हेड एंड नेक का भी हो सकता है, कैंसर थ्रोट के कैंसर का हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है. तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको हम सॉलिड कैंसर बोलते हैं, राइट. ब्रेस्ट कैंसर हो गया जो बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में, सर्वाइकल कैंसर्स, देन जेनाइटोयूरिनरी कैंसर्स, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कैंसर्स, या फिर मसल्स के या बोन्स के कैंसर्स, ये सारे हमारे कैंसर सॉलिड कैंसर्स में आते हैं. बट देन ऑफ कोर्स ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एंड ब्लड का भी कैंसर हो सकता है. लिम्फ नोड्स, ब्लड, ये वाले जो कैंसर्स होते हैं जिनको लुकीमियाज बोलते हैं, लिम्फोमास बोलते हैं, मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं, ये काफी फेमिलियर टर्म्स होते हैं एक्चुअली. ये सारे हेमाटोन्कोलॉजिस्ट देखते हैं. अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैन आल्सो प्रैक्टिस बोथ. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, बट मेनी पीपल आर स्टार्टिंग टू चूज साइट स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी नाउ. तो ब्रॉडली स्पीकिंग सॉलिड कैंसर्स एंड लिक्विड कैंसर्स हो गया. एंड आजकल सॉलिड कैंसर्स में भी कई लोग सब साइट स्पेशलिटी भी कर रहे हैं. सो वर्ल्ड वाइड यू वुड सी, और कई पेशेंट्स भी हमें पूछते हैं कि हमें लंग कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है, या हमें ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है. दोज थिंग्स आर मोर नॉर्मल वर्ल्ड वाइड रादर देन इन इंडिया. हाई वॉल्यूम सेंटर्स में सब साइट ऑन्कोलॉजी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे वॉल्यूम इतना है कि हम साइट्स के हिसाब से स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं कि ओके दिस डॉक्टर इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, पर इनकी स्पेशलाइजेशन इन डेप्थ नॉलेज जो है वो ब्रेस्ट कैंसर्स में है, या फिर गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में है तो वो ओवेरियन कैंसर्स देखेंगे, एंडोमेट्रियम कैंसर्स देखेंगे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट रिलेटेड कैंसर्स देखेंगे. तो एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे नॉलेज है, इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो साइट स्पेसिफिक होते हैं, these things are oncology ki overall practice is also starting to become more and more specialized. Okay, so cancer, what I am understanding from your words is that cancer एक particular disease नहीं है, but there is a variety of cancers that can happen, like there is a depth of ways cancer can enter into your body. Yes, so cancer is nothing but uncontrolled excessive growth, abnormal growth of our cells. Each cell has the capability of having a timed pre-programmed cell death. वो सेल हमेशा के लिए मल्टीप्लाई नहीं होता रहेगा, कभी ना कभी उसकी एजिंग होएगी एंड देन वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, ओके, उसको हम अपॉप्टोसिस बोलते हैं ना टेक्निकल टर्म्स, बट दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ. जब वो सेल वो प्रोग्राम सेल डेथ करना भूल जाता है, उसकी अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है, वही ट्यूमर बन जाता है. और जब वो ट्यूमर अगर बॉडी में अपनी जगह से और कहीं फैल सकता है, उसी को ही हम कैंसर बोलते हैं. तो कैंसर इज नथिंग बट हमारी जो एक जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, हमारी जीन्स में प्रोग्राम ऑलरेडी डला हुआ है कि सेल को कैसे डिवाइड होना है, कैसे कब उस सेल का डेथ होना है, उसका फंक्शन क्या है उसके लाइफ टाइम में. अगर वो चीज अबनॉर्मल हो जाती है कहीं पे भी, so that thing becomes cancer. तो जनरली स्पीकिंग इसी से हमारे फिर स्टेजेस डिफाइन होते हैं, राइट. और आप जैसे कह रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम होती है. तो अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो लोकल प्रॉब्लम भी हो सकती है सिर्फ ब्रेस्ट में, या फिर वो अपनी जगह से अगर फैल के लंग में चला गया या बोन्स में चला गया तो वो एक सिस्टमिक इशू हो गया ना, वो स्टेज 4 कहलाया जाता है उस समय पे. तो इसीलिए हमारा ट्रीटमेंट भी डिफर करता है स्टेज वाइज. So, in simple terms, समझने के लिए लोगों के लिए excessive cell growth या फिर abnormal, excessive, uncontrolled, and इनकी death हो ही नहीं रही है कभी. इनकी death नहीं हो रही है. So they form a collection. Yes. Okay. That is how it evolves into cancer. Yes. अगर हम इसको समझना चाह रहे हैं तो बेसिक एक फंक्शन है सेल का प्रोडक्शन और डेथ होता है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है. If we look into the causes of it, what are the identified causes for cancer? See, identified causes, you would be surprised to know that a large percentage of cancers are still happening because of environmental factors.
right? Like factors that are not genetic, basically हमारी genes में problem नहीं है, but हमारे surrounding environmental issues हैं या physical factors हैं जो impact करते हैं, and they can cause cancer. And it's not necessarily only environmental, it is also lifestyle related, lifestyle related problems like diabetes, obesities, hypertension, these kind of factors also. And then there's of course air pollution, the kind of food that we are eating. So these are known as modifiable risk factors. Non-modifiable may of course advanced age. It's just natural to a body के जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, ये जो सेल के फंक्शन होते हैं वो अबनॉर्मल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम में ब्रेक डाउन आता है. अगर सिंपल वे में बोला जाए कि एक फोटोकॉपी मशीन में कहीं एरर आ गया तो वो गलत फोटोकॉपी हो गई, उसमें सारे पेपर ही गड़बड़ हो गए. तो सिंपल वे में अगर बोला जाए तो वो कॉपी बनाने की जो क्षमता होती है बॉडी की, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में एरर आ गया है ना. तो जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिंड्रोमिक होती हैं, जो हम जानते भी हैं. हेरिडिटरी जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार ब्रेस्ट कैंसर्स फेमिलियल होते हैं, कई लोगों को पता है ब्राका कैंसर जीन के बारे में, है ना. तो जैसे एंजेलिना जोली इफेक्ट बोलते हैं जिसको, मेनी पीपल आर अवेयर कि ब्राका जीन होता है. हाँ, अगर जिसकी फैमिली में ब्राका है उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर की ज्यादा टेंडेंसी होती है. वो अपना ब्लड का टेस्ट भी कराते हैं, जीन टेस्टिंग भी कराते हैं. तो ये चीजें आजकल काफी स्टैंडर्ड होती जा रही हैं. यू कैन गेट टू नो कि आपको रिस्क, आपका रिस्क अगर ज्यादा है इफ यू आर कैरिंग दैट कैंसर. सो जरूरी नहीं है कि 100% सबको कैंसर होगा, बट द रिस्क डेफिनेटली इंक्रीजेस इफ यू आर कैरिंग दैट फॉल्टी जीन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है ना कि 100% ऑफ स्मोकर्स आर गेटिंग कैंसर और 100% ऑफ ओबीस पेशेंट्स आर गेटिंग कैंसर और 100% ऑफ अल्कोहल कंज्यूमर्स आर गेटिंग कैंसर. ऐसा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है. सो देन इट इज एन इंटरप्ले ऑफ आवर एनवायरनमेंट, आवर फिजिकल फैक्टर्स एंड आवर जीन्स what causes cancer. But as a doctor, जैसे I think everyone suggests to avoid smoking. Yes. Cancer के लिए सबसे पहले tobacco आता है line में. So do you think that is somewhere a major cause of cancers coming in? Absolutely. So there is just no doubt or myth about this. Tobacco and alcohol, and especially if taken together, तो synergistic effect भी proven है. They are definitely causative to cancer. ये तो बहुत सारी studies में proven है. There were decades that went by जिसमें when smoking and tobacco companies were quite in a pivotal role. Posters also. हाँ, so at that time initially it was even advocated it's probably healthy for a person. Even pregnant women were smoking at that time. And then the amount of false information that was outside, and धीरे धीरे that's what motivated many oncologists to study deeply into it. It was seen कि जितने भी smokers हैं उन्हीं में ही lung cancer ज्यादा है. And India में तो head and neck cancers बहुत common है because tobacco chewing is very very common. It's common. So these things are very well actually proven in across literature. And there is absolutely no doubt about it. So number one thing that we counsel to our patients or anybody who comes for screening is, if you are an active tobacco user or a smoker, please quit. Because आप आज की डेट में भी quit करेंगे, you are adding years to your life. Yeah. Also, Dr. Tanvi, you must have seen a variety of patients by now. Yes. People who are working at top positions, kids, mothers, everyone basically. If we profile them, if I want to know people with active lifestyle, working out, athletes, sportsmen, do you see cancer coming in them, or that helps them escape cancer? So that's a very good question. See, overall speaking, जब हम cancer prevention की बात करते हैं, these are the number one things. Diet moderation, balanced lifestyle. You should have a good diet, healthy lifestyle, exercise, control excessive weight, and of course refrain from excessive consumption of alcohol, no smoking, things like that. Those are the patients, those are the people who have lesser risk, but they are not completely, of course, spared of cancer. एक general population का भी risk होता है, जो दूसरे factors के कारण हो सकता है. It could be because of the age itself. It could be because of the sex of the person. Females are more, they are more prone to certain cancers as compared to males. Males are prone to certain cancers as compared to females. So many things are there that interplay, and then genetic hereditary syndromes that I already mentioned. Sometimes there are spontaneous mutations also that happen in a patient. तो ये जो spontaneous mutation होता है ना, जो हमने copy paste वाली बात की और उसमें कहीं error आ गया
कोई जीन गड़बड़ प्रिंट हो गया और फिर उसका पूरा कैंसर का मतलब ऑनसेट इसलिए हो गया क्योंकि पूरा फंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया उस सेल का, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो हमारे ओपीडी में भी नंबर 1 क्वेश्चन, स्पेशली पेशेंट जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है कि ये तो योगा करते हैं, ये तो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, आज तक नॉनवेज नहीं खाया, सो एंड सो फोर्थ, कभी अल्कोहल टच नहीं किया, इनको क्यों हो गया। उन लोगों को एक्सेप्ट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इस चीज की अवेयरनेस अभी भी थोड़ी कम है कि हमने तो सब कुछ सही किया फिर भी हमारे साथ क्यों हुआ। क्योंकि कैंसर कैन लिटरली हैपन इन एनीबॉडी, इट्स जस्ट हमारा रिस्क वेरी कर सकता है, बट इट कैन हैपन इवन इन द जनरल पॉपुलेशन दैट इज हेल्दी। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस किसी में भी हो सकती हैं। हम देखते हैं लंग कैंसर पेशेंट्स जो कभी स्मोक नहीं करते हैं, उनमें भी लंग कैंसर पाया जाता है, और वहां पे ही प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का रोल आता है। हम म्यूटेशन टेस्टिंग करते हैं, हमें आज की डेट में नॉलेज है कि ऐसे कौन से म्यूटेशंस हैं जो स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो सकते हैं एक पेशेंट के लाइफ टाइम में, और वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। एंड ऑफ कोर्स इन म्यूटेशंस के लिए आज की डेट में ट्रीटमेंट भी है। तो अगर मेरे पास कोई स्टेज 4 का भी लंग कैंसर पेशेंट आता है, एज अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम कुछ इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस सब पेशेंट्स में टेस्ट करते ही करते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल ट्रीटमेंट इस पूरे प्रोफाइल पे मैटर करता है। पेशेंट का डायग्नोसिस, बायोप्सी, उसका टाइप क्या है कैंसर का, उसकी स्टेज क्या थी कैंसर की, एंड देन ना आफ्टर दैट उसका मॉलिक्यूलर प्रोफाइल क्या है, उसका म्यूटेशन प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ऑन अ होल अगर आप अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हो, सो यू हैव, आई थिंक दैट्स एनीवेज अ गुड प्रैक्टिस टू लिव अ हेल्दी लाइफ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ ना। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीजें हमारे हाथ में हम कम से कम उसका ध्यान रखने की कोशिश करें। मैम, जो आपने ट्रीटमेंट्स बताए, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, इसमें सबसे कॉमन ट्रीटमेंट या सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है या फिर सब के स्पेसिफिक रोल्स हैं? राइट, सो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है। ट्रेडिशनली सबको पता है कि कीमोथेरेपी, कैंसर मींस कीमोथेरेपी, एवरीवन हैज हर्ड, ये बहुत सिनोनिमस सा है ना, क्योंकि मूवीज में सब जगह पीपल हैव हर्ड इट, सीन इट, तो पता है। तो क्योंकि ट्रेडिशनली कीमो ही सबसे पहले डेवलप हुआ था। वो इंजेक्शंस में भी हो सकता है, टैबलेट्स में भी हो सकता है, ज्यादातर लोगों को पता है हाँ एक बॉटल है, ड्रिप है, आईवी कैनुला से जाता है। इसके अलावा देयर आर न्यूअर थेरेपीज दैट हैव कम अबाउट, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जो टैबलेट के फॉर्म्स में भी होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है। ये कुछ नए ट्रीटमेंट के टाइप्स हैं जो अलग तरीके से कैंसर को टारगेट करते हैं। अगर कीमोथेरेपी जाके कैंसर सेल को खत्म करता है, मारता है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी इसलिए होते हैं क्योंकि वो सारे डिवाइडिंग सेल्स को अटैक करता है, तो कैंसर सेल को मैक्सिमम अटैक करता है। वैसे ही इम्यूनोथेरेपी, ऐसे न्यू ड्रग्स आए हैं जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये ऐसे ड्रग्स आए हैं जो अगेन इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी को सिखाते हैं या याद दिलाते हैं कि कैंसर को कैसे अटैक करना है। अब कैंसर सेल्स की एक एबिलिटी होती है, वो अपने आप को इम्यून सेल से छुपा सकते हैं, उससे एस्केप कर सकते हैं, तभी हमारी बॉडी नेचुरली कैंसर को खत्म नहीं कर पाती, बट कर सकती है। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि इन्फेक्शन तो खत्म हो जाता है बॉडी में आके, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। बट आपने बोला कि वो मेडिसिन हमारे इम्यून सिस्टम को याद हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, इट हैज द कैपेबिलिटी, इट्स जस्ट कैंसर हैज द कैपेबिलिटी टू मास्क इटसेल्फ, and these therapies help in unmasking the cancer, removing the brakes from our immunity, helping our immunity kill these cancer cells. So this is very interesting for me. I want to personally get into this now. आपने बोला याद दिलाता है, so that means our body has the capability to kill cancer cells. See, our body has the capability to identify foreign objects. Yes. Right. ये सबको पता है. तो ये सबको पता है. ये सब concepts. Exactly. So जब एक कैंसर है और उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कहा कि अबनॉर्मल सेल्स होते हैं, वो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल से मैच नहीं करता है, तभी वो माइक्रोस्कोप में भी अलग दिखता है, डायग्नोसिस ही ऐसे बनता है, इट लुक्स डिफरेंट, इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन इट। तो हमारी इम्यूनिटी जो होती है, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज सेल्स एंड डिस्ट्रॉइंग इट ऑल्सो। इट्स जस्ट कैंसर सेल्स ऑल्सो हैज सर्टेन प्रोटीन्स जिससे वो इम्यूनिटी को सप्रेस कर सकता है, इम्यूनिटी से हाइड कर सकता है। तो हम जो ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं आजकल, वो इन्हीं मैकेनिज्म्स को ट्वीक करता है
इन्हीं मैकेनिज्म्स के इंटरप्ले में काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करता है सो दैट इट कैन आल्सो अटैक द कैंसर सेल्स. अंडरस्टूड. वन फॉलोअप क्वेश्चन टू दिस इज, क्या कुछ लोगों में ऐसा होता है अनआइडेंटिफाइड कि कैंसर सेल डेवलप होना शुरू हुआ, उनके इम्यूनिटी सिस्टम ने उसको खत्म कर दिया ऑलरेडी, दे नेवर गॉट टू कैंसर? क्या ऐसा हो रहा है? So these are very rare instances, you know. Traditionally speaking, that does not happen, but yes, there is some interplay of immunity. कई cancers जो होते हैं, छोटे छोटे cancers होते हैं, वो indolent form में ही हमारी body में पड़े होते हैं. ऐसे randomly कभी scan हो गया और एक नोड्यूल कहीं मिल गया, चाहे वो लंग में पड़ा हुआ था या कई बार कॉमनली किडनी में हमें नोड्यूल मिलते हैं या ब्रेस्ट में एक छोटा सा नोड्यूल था, वो हमें 100% श्योर नहीं पता कि will it really progress to becoming a cancer. It is like a cyst. Many times it's an incidental finding. Many times it's an incidental finding. Many lesions are there जिनको हम pre-cancerous lesions बोलते हैं कि वो अभी कैंसर में फॉर्म नहीं हुए हैं, जैसे इंटेस्टाइन में एक पॉलिप बन गया है. हाँ, तो वो कई बारी अपनी लाइफ टाइम में वो पॉलिप कैंसर में भी टर्न हो सकता है या फिर वो पॉलिप ही रिमेन रह जाएगा. अब अगर हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं तो हम पॉलिपेक्टमी करके उस पॉलिप को रिमूव कर देंगे क्योंकि हम चांस रिड्यूस करना चाहते हैं कि इफ एट ऑल इट विल टर्न इनटू कैंसर. बट इट्स नॉट 100% कि दैट पॉलिप विल डेफिनेटली टर्न इनटू कैंसर. बट आप रिमूव कर देते हो तो 100% चांस चला तो हमने एटलीस्ट उसका रिस्क खत्म कर दिया ना कि अब ये पॉलिप आउट है तो ये तो अब कैंसर नहीं बन सकता. तो ये चीजें कई बार ट्रिगर नहीं होती, बेसिकली पड़ी रह जाती हैं. यस, ये पड़ी रह जाती हैं. करेक्ट. तो वो एक एक बायस क्रिएट हो जाता है कि अच्छा हमने इतनी स्क्रीनिंग की तो हमने इतने डायग्नोसिस कर लिए, हमने उस पेशेंट को बचा लिया. बट हमें 100% नहीं पता कि वो सच में एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर बन के स्प्रेड करता या पेशेंट के सच में लाइफ को एंड कर सकता था. जैसे कई बार मैंने सुना है लोगों में बहुत ज्यादा डर हो जाता है, कोई सिस्ट मिलती है बॉडी में या फिर कोई गैंग्लियन बन जाता है, इससे डर जाते हैं लोग. हाँ सी, देखो मोस्ट कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लाइपोमास होते हैं स्किन में, है ना, वो फैट कलेक्शन होता है. दे आर नथिंग बट बेनाइन ट्यूमर्स. फाइब्रोमास होते हैं इधर उधर. तो वी नेवर से कि उसको निकलवा दो एक बारी में. व्हाई? बिकॉज एक लीजन का मैलिग्नेंट पोटेंशियल की भी नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स व्हाट all these tumors, benign tumors, they are not necessarily turning into cancers in patients. Okay. There are certain pre-cancerous lesions. But you should get them checked. Absolutely, because मतलब कोई cyst मिले या कोई ganglion मिले. Absolutely, that is the premise of getting, screening is so important. Self-examination is so important. A breast में भी, young ladies में भी कई बारी cyst होते हैं, as you rightly mentioned. Fibroadenomas होते हैं, fibrocystic disease होती है. It is nothing but just, a benign tumor. And nothing has to be done with it. Many times they are just hormonally driven cysts, fluid-filled cysts, जो fluctuating with the menstrual cycle every month भी होते हैं. It's not necessary that every lump in the breast is a cancer, and that is what we advocate to our patients also. But at the same time, if you feel anything abnormal, वो चेक जरूर कराना चाहिए. आप खुद भी अपने आप को अवेयर करो कि एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्योंकि आप खुद चेक करोगे तो आप एक छोटे से छोटे लंप को भी फील कर सकते हैं. और जब आप उसको वेरीफाई करवा लेंगे एक क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से, तो वो उसको आपको बताएंगे कि आगे बायोप्सी करने की जरूरत है भी या नहीं है. हर लंप की बायोप्सी नहीं की जाती है. तो ये एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि ट्यूमर्स अलग होते हैं, कैंसर्स अलग होते हैं. हर ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है. I think वहाँ पे that awareness is needed. Yes. वरना वो डर के छुपे रह जाते हैं. वो डर के छुपे रह जाते हैं. अब कोई यंग लेडी है, अगर उसको ऐसे फाइब्रोएडेनोमा जैसी प्रॉब्लम है तो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर कोई 40 या 50s में अगर लेडी है और उसको एक हार्ड कुछ स्वेलिंग फील हो रही है, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है एज के साथ साथ कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाता है. So बहुत बहुत ज्यादा चांसेस में आप अपने आप को बचा सकते हैं, पर हम छुपे रह जाते हैं. Yes. डॉक्टर, जैसे आप बता रहे हैं कि अपने आप को चेक करा लेना चाहिए, उससे यू कैन एटलीस्ट सेव योरसेल्फ. दैट इज अ गुड प्रिकॉशनरी मेजर. मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है. अब बहुत लोग अपने आप को नहीं चेक कराते क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है. कैंसर वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस कैरी करता है. आप मुझे ये बताओ, जैसे जो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, उनमें से एवरी पर्सन यू माइट ऑब्जर्व एज अ डिफरेंट माइंडसेट. कुछ बहुत नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, मुझे क्या हो गया है, क्या मैं बचूंगा, एम आई ऑन डेथ बेड. कुछ आ रहे हैं कि डॉक्टर ये जो हुआ है इसको ठीक कैसे करना है, ये बताओ आप, मैं ठीक हो जाऊंगा, आई नो दैट. कुछ ऐसे माइंडसेट से भी लोग आते हैं. क्या इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस में फर्क देखा आपने? सी,
yes, definitely we see all sorts of personalities. अब जब हमारे पास पेशेंट आता है और या डायग्नोसिस, it's called breaking the diagnosis. जब हम उनको बताते हैं या फैमिली से डिस्कस करते हैं, their world turns upside down. They're at their most vulnerable. This is the deepest point that they can be at. You can see the shock in the eyes. You can see the shock, and then there are A, B, C type of personalities, as you've mentioned. कुछ लोग already काफी positive thinkers होते हैं. They're into those kind of healthy mindfulness practices. कुछ लोग already काफी stress वाले personalities होते हैं. Some people are homemakers. Some people have their jobs, career oriented. Age is different. Family responsibilities are different. So I would say उनके सामने अपना पूरा world घूमता है at that point कि अब आगे क्या. The way we take it forward, and ये इंडिया में हमने स्पेशली काफी ऑब्जर्व किया है, many times families don't want the diagnosis to be shared with the patient. पेशेंट को बाहर बिठा देते हैं कि आप जरा बाहर बैठिए, हम डॉक्टर से बात करते हैं. शॉक ना लगे उनको. हमें भी बोलते हैं कि आप प्लीज उनको मत बताइएगा, टू दी एक्सटेंट ऑफ के कीमो भी स्टार्ट कर दो, पर पेशेंट को मत बताना, चाहे कुछ भी बोलो. सो ऐसी फैमिलीज होती हैं. कुछ फैमिलीज होती हैं कि we are ready to share with the patient, or the patient himself is sitting there and discussing the report. Okay. So we see both things. वो फिर बहुत साइंटिफिक वे में they understand everything, they have their questions. वो रिसर्च भी करके आते हैं कि हमने ये पढ़ा था, क्रॉस क्वेश्चनिंग, so many things are there, तो ये दो टाइप के हम लोग एवरीडे अपनी ओपीडी में वेरिएशन देखते हैं. कई लोग आते हैं जिनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं होता है, वो अकेले ही बैठे होते हैं, राइट, या एल्डरली कपल हैं जो बच्चे बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं. तो ये सारे हमने इकोसिस्टम्स देखे हैं. बट एज अ जनरल एडवाइस हम हमेशा ये एडवोकेट करते हैं कि इफ वी टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग द डायग्नोसिस फुली, चाहे हम पेशेंट को हर एक चीज ना बताएं, एडवांस स्टेजेस अगर हैं, वी डोंट नीड टू टेल देम कि आपका कैंसर यहाँ भी फैल गया, यहाँ भी फैल गया, ये प्रॉब्लम है, इतनी लाइफ है, इतने दिन है. Why get into that with them unless they ask us? But we should definitely tell them there is a problem and it looks cancerous. We have to get away from the taboo of that word also. We have to start using it more to normalize it. So we should always discuss with the person who's going to suffer through the whole thing. The family, जो immediate primary caregivers हैं, they should be available in that discussion. And ये चीज जो होती है ना, जब भी हम उनको वो break करते हैं diagnosis, we normalize talking about it. आपके जो apprehensions हैं, questions हैं, आप हमसे be outspoken about it, talk about it. वो पहली मीटिंग में ना हो तो सेकंड मीटिंग में, थर्ड मीटिंग में, let them absorb that diagnosis. We've always seen कि इन लोगों की acceptance of treatment भी better होती है. तो things are very interrelated. When I know my diagnosis, when I know what treatment I have to take, when I know कि क्या क्या होगा, मेरे side effect क्या होगा, they are mentally a little bit more prepared. उनको पता है, एंटिसिपेट कर रहे हैं. जैसे हम बच्चों को भी तो ऐसे ही सिखाते हैं ना, हम रोज बताएंगे कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा. ओपीडी में बताएंगे पूरा A to Z कि आप आएंगे, आप इतने बजे आएंगे, आप खाना खा के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ बैठेंगे, आप अपना टैब लाइए, आप बुक लाइए, आपको कभी भी बाथरूम जाना आप उठ के जा सकते हैं, आपको बीच में खाना खाना आप खा सकते हैं. टॉक अबाउट द नॉर्मल थिंग्स मोर, and don't make it sound like the most dreaded thing that's going to happen to them. I think that's when we take that step forward, we have personally seen, and it is well documented also, कि patients की acceptance of treatment भी better होती है, and that mentality of कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, वो थोड़ा back foot पे चला जाता है. Now talking about the mindset of people, some people are already mentally strong, I would resilient, say, or they have the support system. See, support system is everything. उनको किसी को अकेले ना ये चीज सफर करनी पड़े, तो वो support system भी positive हो, उनको encourage करे, थोड़ा हर चीज को understand करके आगे बढ़े, and at the same time of course follow the treatment as well. जैसे बताया गया है, ऐसे लोगों में ट्रीटमेंट का एक्सेप्टेंस हाई होता है. दे आर यूजुअली more brave about handling the side effects also, talking about complications, and then हमें इन्फॉर्म करना कि जब कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे हम हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवोकेट करते हैं, फीवर हुआ तो एकदम बताना है, डायरिया हुआ तो एकदम बताना है, अल्सर्स हो रहे हो या खा नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम अपने पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं. दे आर वेरी फोर्थ कमिंग विद देयर क्वेश्चंस इन दैट केस. इससे क्या होगा, हम अपने कीमो के या एनी थेरेपी के डोजेस प्रॉपर्ली दे पाएंगे,
उस पेशेंट के आउटकम्स भी अच्छे होते हैं, एक जनरल माइंडसेट स्ट्रांग रहता है एंड पॉजिटिव थिंकिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता ही होता है ट्रीटमेंट आउटकम्स पे। तो क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो जाती हैं that sort themselves out. I think वो positive thinking gives you a mindset to fit into the ecosystem that you at the hospital are trying to create. Yes. क्योंकि अगर आप positive mindset नहीं रखोगे, stress will make you fall out. Fall out of it, be poor compliant, हम अपनी दवाई नहीं ले रहे, हम टाइम पे कीमो नहीं आ रहे, हमें डर लग गया तो हम कराना ही नहीं चाहते ट्रीटमेंट, तो इन चीजों से ही आउटकम्स खराब होते हैं। प्लस न्यूरोप्लास्टिसिटी इज समथिंग दैट इज बीइंग हेवीली रिसर्च्ड ऑन एंड वी नो कि हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को कितना अफेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक हमने जितने कॉजेज अभी तक कैंसर के डिस्कस करे हैं उनमें से सिर्फ एक स्ट्रेस बचता है जो कैंसर होने से पहले भी होता है और कैंसर होने के बाद भी रहता है। See, stress is very well documented. हाँ, you can leave smoking कैंसर का पता चलते ही। अपनी खराब डाइट को भी छोड़ सकते हो, लाइफस्टाइल को भी छोड़ सकते हो, बट बहुत कम लोग हैं जो हो सकता है स्ट्रेस से ट्रिगर हुआ हो कैंसर मे बी। सो ये तो प्रूवन है कि जिन इंडिविजुअल्स में हाई स्ट्रेस है, whether it's related to n number of working hours हैं, overworked हैं, many responsibilities at home हैं, there is a correlation with higher cancer in these individuals. तो ये तो documented है, these things are existing in literature. ये myth नहीं है कि stress से related नहीं है, और stress से ही कितनी lifestyle issues होते हैं, बहुत ज़्यादा। Obesity, diabetes, hypertension, ये सारी problems, stress is at the center of it. Almost everything gets triggered by stress. Definitely. So stress is very important as a factor that we have to recognize कि इसका भी बहुत एक interplay है causing the cancer and then accepting the treatment and then treatment outcomes. Yeah. And इस सब में जब हम patient के around the subject हम उसके अराउंड बात कर रहे हैं, I want to know जो उसके सराउंडिंग में केयर गिवर्स है ना, क्योंकि आई थिंक कई बार वो ज़्यादा बिखर जाते हैं। जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, ये सबको बहुत, क्योंकि वो एक्चुअली ये नहीं समझ पाते कि नाउ दिस पेशेंट इज गोइंग थ्रू दिस, अब हम कैसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं दुनिया जहान एक कर दें इसको बचाने के लिए। बट आई थिंक आपने केयर गिवर्स को बिखरते हुए देखा होगा ओपीडी में। एब्सोल्युटली, एंड केयर गिवर बर्नआउट कहते हैं हम उसको, एंड केयर गिवर्स का भी उतना ही आई वुड से सफरिंग इज जस्ट देयर इन पैरेलल। जिस दिन से वो डायग्नोसिस आया है, पेशेंट एंड केयर गिवर दोनों की स्टोरी शुरू हो जाती है, एंड केयर गिवर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रेस। इनफैक्ट कई बारी तो केयर गिवर्स बहुत चीजें इंटरनलाइज करते हैं जो अपने पेशेंट को भी नहीं बताएंगे, जो डॉक्टर से इंटरैक्ट करते हैं। उनको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है या क्या क्या करने की जरूरत है, तो उनको कितना बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है। दे हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट होम। देन फिजिकली इट इज चैलेंजिंग। कई बार एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनकी केयर करना, उनके लिए चीजें अरेंज करना, फिजिकली हेल्प करना, चाहे वो ड्रेसिंग्स हो या फिर वो दवाई देना हो या कुछ भी हो, टेकिंग दैट टाइम आउट ऑफ योर लाइफ एंड बीइंग अवेलेबल फॉर योर पेशेंट। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल टॉक्सिसिटीज जो होती हैं दैट कम्स विद ट्रीटमेंट। वी नो कैंसर ट्रीटमेंट से कई बार एक क्लास नीचे गिर जाता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटस का। तो ये प्रॉब्लम्स तो बहुत प्रेवलेंट है, नो डाउट। उस चीज का स्ट्रेस, तो देयर इज समथिंग नोन एज केयरगिवर बर्नआउट। इनफैक्ट हम लोग ऐसे एज ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे जो अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं टुवर्ड आवर पेशेंट्स आल्सो, देयर आर प्रोग्राम्स दैट वी कंडक्ट जो केयरगिवर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, नॉट जस्ट पेशेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस वी डू मेनी सच सेशंस, जैसे हमने योगा सेशंस कंडक्ट किए या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट किए, simple activities with patients as well as caregivers, a platform where they can come stand and share their stories। तो इसको हम survivorship बोलते हैं। पेशेंट भी बात करता है, केयरगिवर भी बात करता है, जर्नी ऑफ फाइंडिंग द राइट डॉक्टर फॉर देमसेल्व्स, द राइट ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्व्स। कितना अपने आप को वो क्वेश्चन करते हैं, इतना सेल्फ डाउट होता है, राइट। डिफरेंट कैंसर्स की कम्युनिटीज भी फॉर्म्ड है जहाँ पे सिमिलर डायग्नोसिस के लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमारा वो भी रोल रहता है कि हम कई बार कहते हैं कि अच्छा उनको ये ट्रीटमेंट मिला, आप उनसे बात करना चाहेंगे, फैसिलिटेट हो जाता है। यस, तो उस चीज से अपना शेयर करना, दूसरे के एक्सपीरियंस से थोड़ा हौसला बढ़ाना, मोटिवेशन आई थिंक प्लेज अ बिग रोल। यस, सो वी हैव टू एम्पैथाइज, वी हैव टू मोटिवेट, एंड दैट इज आवर रोल एज as a doctor as well। and caregivers के लिए हम भी वो bridge create करते हैं जहाँ वो भी आके बात कर सकें। आजकल psycho-oncology is also a domain, and it's very important कि a psychologist is also involved in the counseling, क्योंकि हम जितना justify कर सकें, of course resource constraints होते हैं, तो we don't always have these resources with us,
बट एज अ डॉक्टर हम जितना काउंसलिंग कर सकें या फिर हम उनको फर्दर एक हैंड होल्डिंग जो चाहिए होती है या किसी से शेयर करना चाहे, वो हर चीज डॉक्टर को नहीं बोल पाते कई बार, जो उनके फियर्स होते हैं, जैसे पर्सनल बातें होती हैं, तो दे वांट टू मीट विद थेरेपिस्ट, दे आस्क अस और वी टेल देम व्हेनेवर वी नोटिस कि ये पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, जो होता है कई बार डायग्नोसिस के बाद पेशेंट्स को क्लिनिकली डिप्रेशन भी हो जाता है, तो वी हैव टू सेव देम फ्रॉम ऑल ऑफ दैट सो दैट वो अपना ट्रीटमेंट टाइम पे कर सकें। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। हर पेशेंट क्योर की तरफ नहीं भाग रहा है, उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए, है ना। ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बिकॉज हर स्टेज में हम क्योर ऑफर नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, तो उस समय पे क्वालिटी ऑफ लाइफ से ऊपर और कुछ नहीं है, और उसमें मेंटल वेलबींग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आपने जो सारा डिफाइन करा है, इकोसिस्टम इज समथिंग आई थिंक व्हिच इज वेरी क्रूशियल फॉर अ पर्सन हु एवर एनकाउंटर्स कैंसर। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जैसे आपने मेंशन करा आप ब्रेस्ट कैंसर्स काफी देख रहे हो, एंड देयर इज अ कॉमन क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न इन पब्लिक अराउंड दैट, इज दैट क्या लेट प्रेगनेंसी या फिर नो ब्रेस्ट फीडिंग उससे भी ये ट्रिगर होता है? इज दैट सो? यस, सो दीज आर रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया मॉडिफाइबल एंड नॉट मॉडिफाइबल फैक्टर्स, राइट। So these are proven risk factors. Generally speaking 35 and delayed अगर pregnancy होती है, first pregnancy भी अगर नहीं हुई है तब तक, so it has been seen कि ऐसे individuals में breast cancer का risk is slightly more as compared to those who have had pregnancy in the earlier age. तो ये proven risk factors हैं। breastfeeding is protective for a woman. तो breastfeeding is protective for a woman in the sense कि वो breast cancer के risk से हमें बचाता है। So I have always compared it to a general population risk. We have to understand it like that. Risk zero नहीं होता, but it will be lesser as compared to somebody जो नहीं कर रहा. Basically, according to nature, जैसे जो चीजें डिजाइन हुई थी उसके हिसाब से. Absolutely, yes. So we always advocate that. I mean, see, different people, they have different lifestyles now, different goals. You cannot compete with their thought process. Yes, and these, women are very career oriented now. डॉक्टर्स भी तो कितने टाइम तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमने भी कब तक पढ़ाई की है, टिल द एज ऑफ 30-31 वी आर परस्यूइंग आवर स्पेशलाइजेशन। तो कई सिचुएशंस में फैमिली मेकिंग गेट्स डिलेड, एंड दैट अवेयरनेस नीड्स टू बी देयर कि अपार्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल चॉइस, apart from choice, there is something that your body is naturally tuned to do. Biological clock जिसको कहा जाता है, बोलते हैं लड़कियों को, your biological clock is ticking. Yeah, so it's not something to suppress anybody or repress anybody. It's a fact. It's really proven that these things are, they protect us. They protect women. अगर timely first pregnancy हो जाए या फिर आप breastfeed कर पा रहे हो, if you are able to breastfeed, it's encouraged to breastfeed. Otherwise, breastfeed नहीं कर पा रहे direct, तो at least milk express होना चाहिए. Things like that, because there are many hormones at play. At the end of the day, cancer क्यों हो रहा है? वो हार्मोन के imbalance से हो रहा है, वो हमारे genetic factors के वजह से हो रहा है, वो हमारे physical factors के हिसाब से हो रहा है. So these are things that we can modify. I think listening to you and understanding all about cancer so far is that cancer काफी ज़्यादा fluid है, मतलब उसको समझ पाना और उसको origin समझ पाना is not that easy. कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को नहीं पता, but it might be coming. एंड आई थिंक जितना हम अभी लाइफस्टाइल और हमने चीजें डिस्कस करी हैं, a lot of them point out to कि हम नेचर से जितना दूर जा रहे हैं और नेचर के अगेंस्ट जितना काम कर रहे हैं उतना प्रोन टू कैंसर होते जा रहे हैं. Yes. Is I think what our current situation is. हमारे पेशेंट्स जब पूछते हैं कि खाना क्या खाना है, सबसे बड़ा डाउट ये होता है कीमोथेरेपी हो रही है, क्या खाना खाए. मेरा सिंपल आंसर होता है जो आपके नाना नानी दादा दादी बताते थे वो खाना है. बैलेंस फूड, देयर आर नो स्ट्रिक्ट डाइट रिस्ट्रिक्शंस. आप फ्राइड फूड अवॉइड करो, फास्ट फूड खा के ईट क्लीन, घर पे खाओ. यस, नोबडी इज टेलिंग यू व्हीट ग्रास जूस पियो, नोबडी इज सेइंग कि XYZ जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं. नो, आप अपने घर का सिंपल दाल चावल खाना खाएंगे. एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज सेफ फॉर यू, हाइजीनिक, फ्रेशली कुक्ड. यही चीजें तो हमें सिखाई जाती है ना. ये रेफ्रिजरेशन एंड प्रोसेस्ड फूड तो बाद में आया है ना. तो ये सब अगेंस्ट द नेचर. हम कुछ यूनिक या स्पेशल एडवाइस नहीं दे रहे हैं. आप लोग पेशेंट्स को यही समझा रहे हो इन द नटशेल कि नेचुरल प्रोसेस के पास रहो. Absolutely. खाना बना खा लो,
रख के या फ्रीजर में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। आई थिंक Absolutely. यही सब चीजें जो हमें नेचर से दूर लेके जा रही है, और हम सोच रहे हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए। हम यही तो कहते हैं बाहर का जूस नहीं लेना हाँ। है, घर पे बना है तो ले लो, बिल्कुल, यू नो। बिल्कुल। अच्छा, फ्रूट्स हैं उसको पील करके खाओ, क्यों? क्योंकि इतना पेस्टिसाइड यूज हो हाँ। रहा है, वी डोंट नो कितना क्लीन है ना, Correct. हमें इन्फेक्शन से बचना है। Correct. तो And I think ये वो एडवाइस होता है हमारा। खाना बनने के बाद, जैसा आप सही से पॉइंट आउट कर रहे हो कि खाना बनने के बाद जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसकी शेल्फ लाइफ है बनने के बाद, तो विद इन दैट टाइम यू शुड कंज्यूम इट। Yes. ये सब छोटी छोटी चीजें विच Yes. मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। जो आज की डेट में ऐसा लगता है ये कुछ अलग है, हाँ, क्या? ये कुछ अलग क्योंकि नहीं है। कब से होता आ रहा है कब ये, से होता आ है ना? रहा है। So I think this was a great discussion, and thank you for creating all the awareness and helping me with my personal questions also. And I think a lot of people will be really grateful to listen to you. Thank you for coming to the show. Thanks a lot. Thanks for having me.